Hello students, myself Professor Suresh Asbe from SDSM Junior College Palghar welcomes you all in today's session. Today we are discussing about 12th physics, chapter electromagnetic induction. Out of this one subtopic is induction energy and eddy current. Before discussing about this topic, please subscribe my channel, like and share. Okay. Induction energy and energy transfer there. Induction and energy transfer, sorry. Now, how the energy is generated, how much energy is generated, that we have to study here. For that one, consider one diagram. Now, look at the diagram there. In that one, here the plus sign is there. Okay, this is nothing but the magnetic field in which A, B, C, D, that is nothing but the one metal frame is there. Okay, now loop, consider a loop A, B, C, D moving with constant velocity V in a constant magnetic field B as shown in figure 12.9. Okay, ये डायग्राम मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है इसलिए उसका नंबर 12.9 ए लिखा है. Okay, now as we are well known that ये इंडक्शन एनर्जी डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया है ऑलरेडी. Okay, when we are discussing about the Lenz law, at that time we are well known that when any magnetic field in that one, if we have placed a current carrying conductor there, then there is a force is generated. A current I is induced in the loop in clockwise direction and the loop segments being still the magnetic field experiences forces F1, F2, F3. The dashed lines show the limits of magnetic field. Okay, now ये मैग्नेटिक फील्ड है डैश लाइंस का, ये जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बुक में ऐसे दी दी है. ओके, तो ये डैश लाइन ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पोजीशन है. ओके, यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है और F1, F2 और F3 these are nothing but the forces acting on the sides of this loop, moving loop there. Okay, now according to the Fleming's left hand rule, we are well known about the directions of these three forces are there. ओके, तो ये जो फोर्सेस है इन्हीं को हम लोगों ने लॉरेंट्स फोर्स बोला था. तो टू पुल द लूप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट मींस इस डायरेक्शन में हम लोगों को लूप को मूव करने के लिए हम लोगों को क्या क्या कितना फोर्स जरूरत है वो देखो. इट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स F on the loop so as to overcome the magnetic force of equal magnitude but acting in opposite direction. मींस ये जो तीनों का रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट इसका जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा एंड दैट इज इक्वल टू F. ये F इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन एबल टू मूव दिस लूप इन दिस डायरेक्शन. गॉट इट? नाउ तो अब देखो द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन द लूप इज, अब इसके ऊपर जो वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को, तो उसका लूप का वर्क डन कितना होगा वो देखो. द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन द लूप इज जनरली दैट इज कॉल्ड एज अ पावर. द रेट ऑफ at which the work is done, it's a power there, work upon time, that is equal to work done मतलब क्या होता है force into displacement. अब देखो if we consider that this loop is displaced through a distance d, then force is F in time t, then we are getting this work done is equal to force into displacement upon time t there. Okay, this is nothing but the rate of doing work, that is nothing but the power, and that is equal to displacement upon time, that is treated as a velocity. Displacement upon time को हम लोग क्या बोलेंगे, that is a velocity. Therefore हम लोगों को P या पावर का वर्क फॉर्मूला क्या आ रहा है देखो, P is equal to F vector dot V vector. ये फोर्स इनटू वेलोसिटी हम लोगों को मिल रहा है एंड इट इज अ डॉट प्रोडक्ट बिकॉज
power is nothing but the work done, that is nothing but the scalar quantity. इसलिए हम लोगों को ये लेफ्ट हैंड साइड में स्केलर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट लिया है. गॉट इट. तो P इज इक्वल टू F डॉट V. इतना वर्क डन करना पड़ेगा या इतना पावर वहां पे जनरेट होना चाहिए. गॉट इट. या होगा, ऐसे आप लोग बोल सकते हो ना. वही उसी को हम लोग आगे एक्सटेंड कर रहे हैं. देखो, we want to find the expression for P in terms of a B, that is a magnetic field, and characteristics of the loop, that is a resistance, width, that is a length L, and that is the area A. तो इस कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग पावर का फॉर्मूला डिराइव करने वाले, ऑलरेडी हम लोगों ने किया था एक बार. तो फिर से एक बार देखो, we know that magnitude of magnetic flux through the loop is, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वहां पे वो कितना है, phi b, that is equal to b into a, as we are well know this one. Magnetic flux is equal to magnetic field into area. तो एरिया यहाँ पे कितना होगा, L into x, जो डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, that is a b into L into x. Now according to Faraday's law, the magnitude of induced EMF, यदि ये इतना फ्लक्स हुआ तो Faraday's law के हिसाब से EMF कितना इंड्यूस होने वाला है, E is equal to d phi by dt, ये हम लोगों को मालूम है. तो E is equal to मैग्नीट्यूड हम लोगों ने बोला है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ d phi by dt. phi के जगह पे हम लोगों ने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, B into L into x, BLX. तो B into L into dx by dt, तो हम लोगों को मिला BLV. Got it? तो dx by dt that is nothing but the velocity, displacement upon time. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लोग नोटेशन कौन सा भी यूज कर सकते हो. ठीक है, ये x होगा, d होगा या s होगा, यू कैन टेक एनी नोटेशंस आर देयर. तो हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू कितना मिला, BLV, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ, या आप लोग उसको विड्थ बोल सकते हो, एंड दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी विद व्हिच द लूप इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड. गॉट इट. तो the magnitude of induced current I can be written as, अब ये हम लोगों को induced EMF हुआ, तो EMF से हम लोगों को करंट चाहिए. Okay, according to Ohm's law we are well known that V is equal to IR. EMF is nothing but the voltage. तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, देखो, I is equal to magnitude of E upon R. तो मैग्नीट्यूड ऑफ E का वैल्यू हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूट किया, BLV अपॉन रेजिस्टेंस R. तो हम लोगों को इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू कितना मिल रहा है, BLV अपॉन R. इंड्यूस्ड EMF कितना मिल रहा है, BLV, करंट BLV अपॉन R. गॉट इट. इसको मैंने इक्वेशन 3 दे दिया. अब इसको कन्वर्जन करते हैं अभी और आगे. अब देखो, the three segments of the current carrying loop experiencing the deflecting forces F1 vector, F2 vector and F3 vector in the magnetic field B vector in accordance with equation F vector is equal to I L cross B. इसको हम लोग लॉरेंट्स फोर्स बोलते हैं. ठीक है, ये हम लोगों को मालूम है. फ्रॉम द सिमेट्री द फोर्सेस F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर बीइंग इक्वल एंड अपोजिट. तो इस इक्वेशन के हिसाब से F2 और F3, जो पहला डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका डायग्राम में F2 और F3 सेम आने वाले, इक्वल एंड अपोजिट आने वाले. ठीक है. तो F2 vector and F3 vector कैसे हुआ, equal and opposite, that's why they are being equal and opposite there, hence cancels each other. The remaining force F1 vector is directed opposite to the external force F vector. means हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था, इस डायरेक्शन में F था और F1 इस डायरेक्शन में था. ओके, F2 ऊपर के डायरेक्शन में था, F3 नीचे के डायरेक्शन में था. ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स ये कैंसिल हुआ था, हम लोगों ने ये ऑलरेडी डायग्राम में देखा है. ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कैसे है, अपोजिट टू द F1 force there, F1 vector there. That's why we have written F1 vector, yeah, F vector is equal to minus F1 vector there in terms of a vector there. The magnitude of F1 can be written as F vector is equal to ILB sin theta. इस फॉर्मूले के हिसाब से L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मतलब क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इट इज LB sin थीटा देयर. तो हम लोगों ने यहां पे लिखा है ILB sin theta, that is sin 90.
Okay, that is for the maximum force we are getting, that is the theta is equal to 90 degree. So ILB, and that is equal to F. This is nothing but the magnitude of maximum force acting on a side there. Okay, acting on the loop there. Got it? That is a ILB, जो हम लोगों को previous diagram में भी मिला था. तो F1 vector is equal to F vector, that is the magnitude, that is equal to ILB. यदि इस I का वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया इन प्रीवियस पोजीशन, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 3, तो हम लोगों को क्या मिला, देखो BLV अपॉन R, दैट इज द वैल्यू ऑफ I इनटू L इनटू B एज इट इज. तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, B इनटू B, दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R. This is nothing but the magnitude of the force. Okay, that is equation number 4. अब देखो, द रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क इज पावर, जो हम लोगों को मालूम है, द रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क इज नथिंग बट द पावर देयर. तो हम लोगों को वही फॉर्मूला मिलने वाला है, P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर डॉट F वेक्टर देयर, या F वेक्टर डॉट V वेक्टर. तो जो फोर्स का ये वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया इनटू ये V ले लिया. यदि मैग्नीट्यूड हम लोग लेते तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, देखो B square L square V square upon R, and this is nothing but the power, that is the rate of doing mechanical work, that is a power there. Okay, तो वही हम लोग अभी जो लूप लिया था उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कैसे होगा यही डिस्कस करते हैं. ओके, तो सेपरेटली हम लोगों ने लूप का यहाँ पे डायग्राम ले लिया है, दैट इज फिगर 12.9b. इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज E, that is induced current, that is I, and whatever the resistance of the wire, that is a, and collective resistance R of the loop, that is R. Okay, तो ये हम लोगों ने ले लिया. अब इसमें हम लोगों को क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, देखो, if the current I is flowing in the closed circuit with the total resistance R, then the power is a rate of production of heat energy. Okay, so power is nothing but the rate of production of heat energy there. P is equal to, according to Joule's law, power P is equal to I square into R. ये हम लोगों को मालूम है, ये Joule's law यहाँ पे अप्लाई किया, हम लोगों को पावर P is equal to I square into R. तो I का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था, देखो BLV upon R, that is a bracket square, BLV upon R, that is I, उसका स्क्वायर into R. तो इसका स्क्वायर किया तो हम लोगों को एक R यहाँ से एक कट होने वाला है, हम लोगों को मिला P is equal to B square L square V square upon R. This is a power in terms of a voltage. Here, induced current. Got it? Now, after the induction there, induction energy, we can able to say that we are going to discuss about the new topic, that is the eddy current. तो ईडी करंट मतलब क्या है वो देखो. Now, before discussing about the definition, we have to consider about the one term. ED current क्या है वो देखने के लिए ये एक डायग्राम डिस्कस करो. अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, N pole है, S pole है. These are nothing but the magnetic lines of force, and in that one we have placed a block of the conductor, or we can able to say that is a disc of the conductor is there. ठीक है. Now, अब देखो, when conducting metal block or disc is placed in a changing magnetic field, एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, और रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या ये रोटेट होना चाहिए. तो अभी जो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट द ये रोटेटिंग डिस्क का है. ठीक है, डिस्क इज रोटेटिंग इन अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Okay, rotated in uniform magnetic field, then circular or current like eddies in the water are induced in the conducting block or disc are called eddy currents. Okay, तो ये डिस्क मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने की वजह से यहाँ पे EMF या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF and current is induced there, and that current is nothing but the as like eddies. Okay, eddies in the water. Okay, तो पानी में ये जैसे eddies जनरेट होती है, वैसे यहाँ पे
करंट जनरेट होता है, ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ईडी करंट। अंडरस्टूड दिस? तो ये समझना है ये कब होता है, फिर से एक बार देखो। व्हेन कंडक्टिंग मेटल ब्लॉक और डिस्क इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और rotated in a uniform magnetic field, then circular current like eddies in the water are induced in the conducting block or disc are called eddy currents. Okay, so circular currents are generating there. You can consider this one as like a circular currents also. The circular currents are generated in the disk. Okay, remember here it is, this is not due to the disk is rotating. Remember that यदि हम लोगों ने डिस्क कांस्टेंट रखा तभी भी हम लोगों को यहाँ पे सर्कुलर करंट्स मिलेगा इफ वी आर एबल टू चेंज दिस मैग्नेटिक फील्ड एवरी टाइम। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग चेंज कर सकते हैं, ओके, इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, okay, then circular current like eddies in the water are induced. Got it? समझ में आ रहा है? Now this is the first observed by the scientist Foucault. That's why it is also known as Foucault's current and or whirlpool currents are there. Understood this? That is a ED currents are there. अब देखो यहाँ पे ED करंट में हम लोगों को फैराडेज लॉ या लेंज लॉ याद रखना है। ओके, एज वी आर वेल नोन फैराडेज लॉ क्या इंडिकेट करता है, या फैराडेज लॉ का पहला सेंटेंस क्या है, फर्स्ट फैराडेज लॉ क्या इंडिकेट करता है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एट दैट टाइम ईएमएफ या करंट इज इंड्यूस्ड। ये सेंटेंस अच्छे से याद रखना है। गॉट इट? तो अब देखो, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ अ सिंपल पेंडुलम देयर। Now consider the apparatus shown in the figure. A copper plate is allowed to swing like a simple pendulum between the pole pieces of a strong magnet. ये magnets है N and S. These are nothing but the two strong magnets are there. In that one, a copper metal plate. ये copper का plate है, ठीक है? And that is swinging. Okay, it is as like a simple pendulum. Now what happens here it is, ये magnetic field है and ये copper है, remember this one. तो it is observed that it is found that the motion is damped and in a little while the plate comes to halt in a magnetic field. Damped oscillation इसका मतलब क्या है? That is the amplitude of the oscillation that goes on decreasing, that is called as a damped oscillations are there. So motion is a damped and यहाँ पे damped motion हो रहा है, मतलब धीरे धीरे ये ऐसे इसका जो एम्पलीट्यूड है धीरे धीरे कम होते जाएगा एंड फाइनली इट इज एट अ रेस्ट। ओके, ये बीच में रुक जाएगा। अंडरस्टूड दिस वन? यदि ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये ज्यादा ऑसिलेट होता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे कम ऑसिलेशंस हुए और जल्दी रुक जाता है। ओके, ऐसे क्यों हुआ होगा? तो अब देखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स associated with the plates keeps on changing as the plate moves in and out of the region between the magnetic poles. तो यहाँ पे क्या है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी इसमें से पास हो रही थी वो हर बार यहाँ पे कट होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से होता क्या है फिर, एज वी आर वेल नोन व्हाट इज इट, क्या होता है, दैट इज ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे ईडी करंट जनरेट होता है। गॉट इट? द फ्लक्स चेंजेस इंड्यूसेस ईडी करंट्स इन द प्लेट, तो यहाँ पे ईडी करंट जनरेट होता है। एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ ईडी करंट्स आर अपोजिट। क्यों ऐसे अपोजिट है? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। Okay, when the plate swings into the region between the poles and when it swings out of the region, means ये इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, या इन बिटवीन दिस वन और बाहर की तरफ जो है उसकी डायरेक्शन हर बार चेंज होती रहेगी। Okay, that is according to the Lenz law. As we are well known that is the induced EMF opposes the change in magnetic flux. ये लेंज ने बताया था और वहां पे यही हो रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज होता है? क्योंकि दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम।
ठीक है, सिंपल पेंडुलम की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इसीलिए जो भी यहाँ पे ईडी करंट जनरेट होता है दैट अपोजेस द मोशन ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, and that's why the amplitude of this simple pendulum goes on decreasing, and that's why finally it stops. तो ये जो कॉपर प्लेट है या मेटल कंडक्टर है, ओके, ये यहाँ पे ईडी करंट प्रोड्यूस करता है। जितना ज्यादा ईडी करंट जनरेट होगा उतना यहाँ पे अपोज ज्यादा होगा। Okay, at the same time one thing is that jitna, as we are well known, according to Joule's law, when the current passes through the any conductor, at that time what happens, heat is generated. तो जितना ज्यादा ईडी करंट जनरेट होने वाला है उतना ज्यादा यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस करता होगा। Got it? तो उसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है कि अभी क्या होता होगा एंड हाउ टू रिड्यूस दिस ईडी करंट। तो जो प्रीवियस डायग्राम था उसका जो मेटल प्लेट था और यहाँ पे जो मेटल प्लेट है उसका ऑब्जर्वेशन करो, ठीक है। तो वहां पे एक कंटिन्यूअस मेटल ब्लॉक था, अब यहाँ पे चेंज हुआ। नाउ इफ रेक्टेंगुलर स्लॉट्स आर मेड इन द कॉपर प्लेट as shown in the figure, the area available to flow of eddy currents is less. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये ऐसे एरिया as like a comb like structure, यहाँ पे देखो ये अच्छे से दिख रहा है, that is a comb like structure is generated there. If it is, then eddy current have less area to generate. तो वहां पे ईडी करंट को घूमने के लिए कम जगह मिलेगी एंड दैट्स व्हाई लेस ईडी करंट इज जनरेटेड। यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे जनरेट होगा, लेकिन टुगेदर एक साथ नहीं है, अलग अलग जगह पे जनरेट होगा लेकिन लेस होगा। एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस हियर इट इज thus the pendulum plate with holes or slots reduces electromagnetic damping and the plate swings more freely. मतलब पहले से ज्यादा फ्रीली अभी यहाँ पे प्लेट्स मूव हो रही है। ओके, दैट इज ड्यू टू द स्लॉट्स जनरेटेड इन दिस कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट में ये स्लॉट्स जनरेट किए तो ज्यादा फ्रीली जनरेट होता है। व्हाई इट इज, दैट इज ड्यू टू द जनरेशन ऑफ या इंडक्शन ऑफ अ लेस ईडी करंट। गॉट इट? समझ में आ रहा है ये? Okay, now this fact is helpful in reducing eddy currents in the metallic cores of transformer. अभी ये जो हम लोगों ने स्लॉट्स जो बनाए हैं, ठीक है, ये स्लॉट्स का एप्लीकेशन किधर है, तो ये यहाँ पे बताया। This fact is helpful in reducing eddy currents in the metallic cores of transformers, electric motors, and other such devices in which a coil is to be wound over a metallic core. तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे होता है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक में। ओके, तो वहां पे और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों को याद क्या रखना है, ये जो टर्म है ये यहाँ पे यूजफुल है। दैट इज अ ट्रांसफार्मर। कौन सा? मेकिंग अ स्लॉट ऑफ द प्लेट। एक प्लेट यूज करने की जगह पे यहाँ पे उसके स्लॉट्स हम लोगों ने किए। ओके, नाउ ईडी करंट्स आर अनडिजायरेबल सिंस they heat up the core and dissipate the electrical energy in the form of a heat. जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बोला था थोड़ी देर पहले, क्या बोला था कि करंट क्या जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है। दैट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट जूल्स लॉ। okay, that is h is nothing but the vit या I square RT. by using that formula we can able to calculate the heat. तो जितना ज्यादा करंट जनरेट होगा उतना ज्यादा यहाँ पे हीट जनरेट होने वाला है। that is eddy current generates the unnecessary heat is there. okay, आप लोग बोल सकते हो कुछ apparatus में unnecessary heat हो सकता है, but this unnecessary heat sometimes it is used there. कुछ जगह पे ये यूजफुल भी है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस, ईडी करंट्स आर यूज्ड टू एडवांटेज इन सर्टेन एप्लीकेशंस लाइक, अब यहाँ पे हीट का नहीं, जनरल ईडी करंट का एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मींस ईडी करंट के कौन से एप्लीकेशंस है, कहाँ पे ये यूजफुल है, वो हम लोगों को डिस्कस करना है, या कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ओके, जस्ट रिवाइज दिस वन। दैट इज फर्स्ट वन, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। ट्रेन्स में जो ब्रेकिंग है वो मैग्नेटिक ब्रेकिंग है, दैट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम इज देयर एंड इन व्हिच दैट इज एडी करंट्स आर जनरेटेड। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग एडी करंट्स का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, इंडक्शन फर्नेस, जो हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने बोला था कि हीट जनरेट जो होता है वो उसका कहाँ पे भी यूज हो सकता है, दैट इज नथिंग बट द फर्नेस, दैट इज
इंडक्शन फर्नेस इज देयर. ओके, जहां पे ईडी करंट का यूज, ईडी करंट का हीटिंग इफेक्ट जहां पे यूज होता है. ओके, देन इलेक्ट्रिक पावर मीटर, जो हम लोगों के घर पे पावर मीटर्स है, इन दैट वन आल्सो वी आर यूजिंग, दैट इज अ ईडी करंट्स आर देयर, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स आर देयर. एंड स्पीडोमीटर, हर एक व्हीकल का जो स्पीड इंडिकेट करता है, दैट इज अ स्पीडोमीटर. एंड इन दैट वन, और दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईडी करंट, वो भी ईडी करंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. Okay, these are the some applications of ED current that we are going to, or advantages of ED current in certain applications are there. या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, these are the devices are based on the principle of ED current. Understood this? समझ में आ रहा है? तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, देखो. फर्स्ट वन वी आर डिस्कस अबाउट, दैट इज अ इंडक्शन एनर्जी, जिसमें पावर हम लोगों ने अलग अलग तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस कर किया है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ अ लेंथ, इट इज F इज इक्वल टू BLV, और ये बाकी के टर्म्स देखे थे. Got it? After that one, we are discuss about the one well-known phenomenon, that is a eddy current. Okay, जो हम लोगों को हर जगह पे एप्लीकेबल है, बहुत जगह पे एप्लीकेबल है. ओके, रिमेंबर दिस वन. अनदर वन एग्जांपल ऑफ दिस एडी करंट इज द नथिंग बट द डेडवेट गैलोनमीटर. ओके, जो हम लोग लैब में यूज करते हैं गैलोनमीटर्स, उसमें भी जो आप लोग प्रैक्टिकल करोगे उस वक्त आप लोगों को याद आएगा या समझ में आएगा. तो उसमें भी हम लोग, उस गैलोनमीटर पे भी हम लोग ईडी करंट का फंक्शन या यूज करते हैं. ठीक है, thank you for watching. Okay, you can like, share and subscribe my channel.